ماں کے بچے جانے کا وقت ہو گیا ہے، تیار ہو جاؤ، وہ بولی۔ کل سے خوب گھوم رہے ہو، کاجل پوچھے گی۔ کاجل پوچھ چکی ہے، میں نے جھلا کر کہا اور اٹھ بیٹھا۔ میری آنکھیں بدستور بند تھیں۔ ہاں، کل بار بار اس کا فون آ رہا تھا، ماں پارا ہنسی۔ آپ اسے گولی مارے، میں نے جمائی لی۔ مجھے بس ایک کپ چائے دیتے ورنہ میری آنکھ نہیں کھلے گی۔ چائے آلریڈی موجود ہے، وہ بولی تو میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی، لیکن پہلے منہ ہاتھ دھو کر آؤ۔ میں اب بچہ نہیں ہوں، میں نے جھلا کر کہا۔ میں بھی دیکھ رہی ہوں کل سے 2 لڑکیاں پیچھے پڑی ہے، وہ زور سے ہنسی۔ اور تیسری آپ آ گئیں صبح، میں نے بدتمیزی سے کہا۔ وہ جھینپ گئیں۔ صبح ہی صبح مار کھاؤ گے؟ بڑے شوق سے۔ کیا نرم و نازک ہاتھ ہے، استاد محترم کے پتھر نما ہاتھوں سے بہت بہتر ہیں۔ استاد محترم آئیں گے اگر تم 10 منٹ کے اندر تیار ہو کر ناشتے کی میز پر نہ پہنچے تو۔ ناشتے پر سبھی تھے، شامی بدستور چہک رہا تھا، باقی سب بھی ہنس مسکرا رہے تھے، حتیٰ کہ ماریا کی بڑی بہن بھی بہتر نظر آ رہی تھی۔ ماریا البتہ کبھی کبھی غمگین نظر آتی، لیکن اس لمحاتی دکھ کو بڑی خوبی سے چھپا لیا کرتی تھی۔ ناشتے کے بعد ملازمین نے ایک چھوٹی جیپ پر ہمارا سامان لادا۔ اس میں آگے پیچھے 4 نشستیں تھیں اور عقبی حصے میں سامان رکھنے کے لیے ایک چھوٹا خانہ تھا جو اس وقت سامان سے لبالب بھرا تھا۔ چھت پر بھی سامان رکھا تھا۔ محمود نظامی نے حسن علی سے ہاتھ ملایا، پھر مجھے گلے سے لگایا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں بیٹے، رقم گئی کوئی بات نہیں، لیکن عزت بچ گئی، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ پاپا کے دوست ہیں، اس ناطے میں آپ کو بھی اپنا بزرگ سمجھتا ہوں، میں نے کہا، اور سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ ان کی عزت دشمن سے تو بچ گئی تھی، لیکن ان کی اولاد جس راستے پر چل رہی تھی کیا وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھ پائیں گی؟ ماریا اور اس کی بہنوں نے بے تکلفی سے مجھ سے ہاتھ ملایا، بلکہ ماریا کے انداز میں غیر معمولی کرم جوشی تھی۔ حسن علی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، اس کے برابر میں مہاپارا بیٹھی تھی۔ جب میں پچھلی نشست پر بیٹھنے لگا تو ماریا نے مجھے ایک پیک شدہ چوکور ڈبہ دیا۔ یہ تمہارے لیے گفٹ ہے میری طرف سے، وہ آہستہ سے بولی۔ شکریہ، میں نے کہا اور اندر بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ حسن علی نے جیپ چلا دی۔ اسلام آباد کے خوبصورت راستوں سے گزرتے ہوئے میرا ذہن گزشتہ 2 دن کے واقعات میں الجھنے لگا۔ جمشید پیلس سے روانگی کے فوراً بعد ہی مجھے حیرت انگیز نوعیت کے تجربات ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آنن فانن میری محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ ایسا صرف قصے کہانیوں میں پڑھا تھا۔ ڈاکوؤں کے خلاف ایک سنسنی خیز فتح حاصل کی جبکہ میں نہتا تھا۔ ایسا صرف فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی تنگ ندی سے نکل کر کسی وسیع دریا میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے ماریا کے جذبوں کا مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ میں مجبور تھا اور میں نے اسے اپنی مجبوری بتا دی تھی۔ میں نے بے خیالی میں اس کا تحفہ کھولا۔ اندر سے روایتی تحفہ نکلا جو اکثر لڑکیاں اپنے محبوب کو تحفے میں دیتی ہیں، یعنی پرفیوم۔ ایک لٹو نما شیشی تھی جس میں زردی مائل نیلا سیال ہل کورے لے رہا تھا۔ میں نے بے خیالی میں اس کا بٹن دبایا۔ اسپرے کی فوار فضا میں گئی اور فضا آہستہ آہستہ مہکنے لگی۔ بڑی انوکھی مہک تھی، اسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ خوشبو پھیلی تو مہاپارا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ بڑی پیاری خوشبو دی ہے ماریا نے۔ بڑی پیاری لڑکی ہے، ان کا لہجہ معنی خیز تھا۔ دنیا میں بہت ساری لڑکیاں پیاری ہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا اور شیشی کو واپس پیکنگ میں ڈال دیا۔ لگتا ہے کاجل نے ہوش ٹھکانے لگا دیے تمہارے، کل سے اڑے اڑے پھر رہے تھے، حسن علی ہنسا۔ لڑکیاں اسی طرح ہوش اڑاتی اور ٹھکانے لگاتی رہتی ہیں، میں بولا تو حسن علی کھسیا گیا تھا۔ مہاپارا نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں تھکاوٹ سے محسوس کر رہا تھا، اس لیے پچھلی نشست پر نیند دراز ہو گیا۔ جب ہلکے سے جھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ باہر تیز دھوپ چمک رہی تھی، لیکن ہوا کی خنکی بتا رہی تھی کہ ہم سطح سمندر سے خاصی بلندی پر آ گئے تھے۔ جیپ سڑک سے ذرا ہٹ کر نشیب میں درختوں کے ایک گھنے جھنڈ میں کھڑی تھی۔ حسن علی اور مہاپارا باہر تھے۔ میں بھی جیپ سے اتر آیا۔ مسلسل ایک ہی انداز میں رہنے سے جسم جم سا گیا تھا۔ میں نے ذرا ہاتھ پیر چلائے۔ کچھ دور مہاپارا ایک چھوٹی سی ندی کے بہتے پانی میں پیر ڈالے بیٹھی تھی۔ حسن علی ان سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ دوسری طرف نکل جاؤں۔ سڑک دوسری طرف ذرا بلندی پر تھی۔ میں قریب آیا۔ اسی لمحے ایک سفید ڈانسن پک اپ تیزی سے گزری۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اس کا نقوش ارشد باللہ سے ملتے تھے، لیکن وہ ارشد باللہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ ڈکیتی اور قتل کے الزام میں پولیس کی تحویل میں تھا، وہ زخمی بھی تھا۔ میں واپس آیا تو مہاپارا جیپ سے سامان نکال کر سامنے ہری بھری گھاس پر بچھے دسترخوان پر سجا رہی تھی۔ میں نے سرسری سے انداز میں حسن علی سے پوچھا کہ آپ نے راستے میں کوئی سفید ڈانسن پک اپ دیکھی تھی؟ وہ ہنسا۔ بے شمار سڑکوں پر نظر آنے والی ہر تیسری گاڑی ڈانسن پک اپ ہی ہوتی ہے۔ میں نے اسے اپنے مشاہدے سے آگاہ کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا تمہیں دھوکا ہوا ہوگا، ممکن ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ راستے میں ذرا محتاط رہیں۔ ہم نے ان ڈاکوؤں سے پنگا لیا ہے جو اسلام آباد جیسی جگہ پر دیدہ دلیری سے وارداتیں کر رہے تھے۔ برخودار جب کوئی صورتحال سامنے آئے گی تو دیکھ لیں گے، فی الحال تو کھانے سے 2 ہاتھ ہو جائیں، بڑی بھوک لگی ہے۔ وہ دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے بولا۔
जिस पर गर्मा गर्म हाट पाट से निकाले हुए आलू भरे पराठे, कीमे, अंडे का सालन और चटनी अचार के साथ फिरनी भी थी। सफर के दौरान मुसलसल धचकों ने भूख चमका दी थी। मैं हाथ मुंह धो आया और आते ही हसन अली के साथ खाने पर टूट पड़ा। माँ पारा हमें तमीज से खाने की तलकीन करती ही रह गईं और हमने सचमुच दस्तरखान साफ कर दिया। हालांकि महमूद निजामी के बावर्ची ने हर शय खासी मिकदार में रखी थी। खाने के बाद सुस्ती तारी होने लगी, लिहाजा फैसला हुआ कि 2 घंटे आराम के बाद शाम 4:30 बजे रवाना होंगे। अब सफर ज्यादा नहीं रह गया था। अगरचे हम सब ही पहली बार इस इलाके में आए थे, लेकिन हमें यहाँ की वजाहत इतनी अच्छी तरह कर दी गई थी कि अब रास्ता बिल्कुल आसान लग रहा था। पेट भरी नींद ने असर दिखाया। मैं और हसन अली तो घोड़े बेच कर सोए, खुद माँ पारा भी ना चाहते हुए काफिल हो गई। हम वहीं हरी भरी घास पर दराज थे। जब उनकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। जीप सड़क पर आते ही हसन अली ने इतनी तेज रफ्तारी का मुजाहिरा किया कि महापारा को उसे टोकना पड़ा। इतनी जल्दी भी क्या है, अगर हम जरा देर से पहुंचे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी? मुमकिन है आ ही जाए। इस इलाके में मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अव्वल तो तारीकी में रास्ते तलाश करना नामुमकिन होता है, और अगर बारिश वगैरह होगी तो कोई राह बताने वाला भी नहीं मिलेगा। सारी रात जीप में ठिठरते गुजरेगी। बाजुकात कारकुनाने कज़ाओ कदर मुंतजिर होते हैं कि इधर आदमी के मुंह से कोई बात निकले और उधर वो उसे उचक कर बाबे कबूलियत तक पहुंचाते। मैंने देखा कि दूर जनूब मशरिक से स्याह घटाएं उमड़ते चली आ रही थी। हसन अली ने भी इन्हें देख लिया था और रफ्तार बढ़ा दी। अब हम एबटाबाद शहर से 40 मील के फासले पर थे और उसे 2-3 मील पहले एक जैली सड़क मगरिब की तरफ घूम जाती थी, जो आगे जाकर एक वादी में खत्म होती थी। इस वादी में साहिब सरवत लोगों ने बंगले और काटेज बना रखे थे, जिसमें वो गर्मियों में अपने अहले खाना के साथ आकर ठहरा करते थे। अभी सूरज डूबने में कुछ देर बाकी थी कि बादलों ने आसमान पर कब्जा करके माहौल को तारीक कर दिया। मजबूरन हसन अली को रफ्तार कम करनी पड़ी थी। उसने तशवीश से कहा, अगर बारिश होगी तो जीप चलाना मुश्किल हो जाएगा। खुदा न करे, मैंने जल्दी से कहा। मोहतरम जरा अच्छी बात मुंह से निकालें। अभी कुछ देर पहले आपने मौसम का जिक्र किया था और बादल आदम के। अब आप, मेरी बात अधूरी रह गई। बिजली ऐसी तड़प कर चमकी थी कि मापारा के मुंह से चीख निकल गई। आसमान यूं रोशन हो गया जैसे फ्लैश चमकी हो। 1 मिनट बाद ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसका सिलसिला इतना तेज हुआ कि कुछ ही देर में सारा माहौल जल थल हो गया। पानी की बरसती चादर की वजह से 10 गज के फासले पर मौजूद चीज नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में ड्राइविंग करना बिला वजह हादसे को दावत देने वाली बात थी। लिहाजा हसन अली ने सड़क से जरा हटकर एक चट्टान तले जीप रोक ली। यहाँ पानी की बौछार कम थी, लेकिन जीप में हम वैसे ही महफूज थे। इंजन बंद करने के बजाय इसे चलता रहने दिया ताकि बाद में इसे स्टार्ट करने में कोई मसला न बने। पहाड़ी इलाकों में बारिश जितनी तेजी से शुरू होती है, इतनी ही तेजी से बंद भी हो जाती है। 2 घंटे बाद बारिश का जोर टूट गया, लेकिन रिमझिम जारी थी। आसमान पर बदस्तूर तारीक बादल थे और इनके टलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। मेरा ख्याल है हमें आगे चलना चाहिए, हसन अली बोला। खुदा के लिए तुम देख नहीं रहे, जा बजा नाले जारी हो गए हैं। सड़क पर बेइंतहा फिसलन होगी। मैं कम रफ्तार से जीप चलाऊंगा, यहाँ रुके रहे तो सर्दी से जम जाएंगे। बाकी जरा सी देर में जीप के अंदर का माहौल यख बस्ता हो गया था। बाहर की सर्दी का अंदाजा लगाया जा सकता था। जीप चलने की सूरत में कम से कम हीटर ऑन हो जाता तो सर्दी का इतना एहसास न रहता। ईंधन की हमें फिक्र नहीं थी। रास्ते में एक जगह न सिर्फ जीप की टंकी फुल कराई थी, बल्कि पेट्रोल से भरे 10-10 लीटर के 2 कैन भी अकबी हिस्से में रखे थे। तय हुआ कि आगे रवाना हुआ जाए। हसन अली एहतियात से जीप सड़क पर ले आया और मुस्तकिल पहले गियर में चलाने लगा। सड़क पर वाकई फिसलन हो गई थी। जरा सी ढलान आते ही जीप किनारे की तरफ फिसलने लगती थी। हसन अली महार से जीप को मुस्तकिल 10-12 मील फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ा रहा था। रात के 10 बज चुके थे और हम हनूज अपनी मंजिल से खासे दूर थे। दोपहर को जरूरत से ज्यादा खा लेने के बाद भूख का एहसास तो नहीं था, लेकिन किसी गर्म शय की जरूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी। तकरीबन 20 घंटे बाद सड़क पर एक रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड नजर आया। रेस्टोरेंट सड़क से जरा हट कर था और बाज़ाहिर बंद ही नजर आ रहा था, लेकिन हसन अली ने जीप उसकी तरफ घुमा ली। यहाँ से कोई गर्म चीज पीने के अलावा हम रास्ता भी मालूम कर सकते थे। रात की तारीकी में अंदाजे पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। रेस्टोरेंट की पार्किंग तारीक थी, अलबत्ता सामने वाले हिस्से में एक बल्ब रोशन था। यहाँ कोई ना कोई था। मुस्तकिल हार्न देने पर बिलाकर रोशनी हुई और दरवाजे पर एक नौजवान नमूदार हुआ। छतरी लेकर वो सीधा हमारी तरफ आया था। जी जनाब, उसने खुश हल्की से कहा। रात को जगाए जाने पर भी उसके अंदाज में नागवारी नहीं थी। यार 2 काम है, एक तो कोई पीने वाली चीज चाहिए, कॉफी चाय, बल्कि इस वक्त तो जुशांदा भी चलेगा, हसन अली बोला। मिल जाएगी, उसने कहा। और दूसरा काम, हमें रास्ता मालूम करना है। यह जरा मुश्किल है, लेकिन मैं बाबा को जगाता हूँ, वो यहाँ के एक एक पत्थर से वाकिफ हैं। आप अंदर आ जाएं। हसन अली ने एहतियातन इंजन चलता रहने दिया
अलबत्ता इसने चाबी निकाल कर दरवाजे लॉक कर दिए थे। ऊपर के सामान को कोई खतरा नहीं था। रेस्टोरेंट सादा सा था। मरकजी हाल में दर्जन भर मेजें थीं। अगवे हिस्से में दीवारों पर खिड़कियों के बजाय शीशे थे, जिनसे यकीनन पहाड़ों का मंजर खूबसूरत नजर आता होगा, मगर इस वक्त सिवाय तारीकी के कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाल की गोशे में एक बूढ़ा लेटा हुआ था। इसकी राइफल बता रही थी कि वो चौकीदार था, लेकिन मौसम ने उसे अंदर आने पर मजबूर कर दिया था। एक और बिछा बिस्तर जाहिर कर रहा था कि नौजवान यहीं दराज था। इस जगह एक आतिशदान भी था जिसमें आग दहक रही थी। नौजवान शायद यहाँ मुलाजिम था। उसने चौकीदार को उठाया, जो खासी मुश्किल से बेदार हुआ था। नौजवान इसे हमारे बारे में बताकर किचन में चला गया। बड़े मियाँ को मुकम्मल तौर पर बेदार होने में खासी देर लगी थी। जी साहब, हम आपकी क्या खातिर करें, उसने कहा। हसन अली ने उसे समझाया कि हमें किस मकाम तक जाना था। बूढ़े ने बीड़ी निकाल कर सुलगाई और कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हम जान गया। अभी आप उधर से निकलेगा, उसी रोड पर जाएगा। एक छोटा पुल आएगा, फिर एक बड़ा पुल आएगा। पुल के बाद 2 मील और सीधा पर रास्ता निकलेगा। आप इस पर मुड़ जाएगा, सीधा वादी तक जाएगा। रास्ते के शुरू में सफेद रंग का दीवार है जिस पर जाने का इशारा बना है। मैं समझ गया। हसन अली ने सर हिलाया। महापारा आतिशदान के पास से हाथ ताप रही थी। अचानक मेरी तवज्जो एक कोने में रखी 2 टूटी कुर्सियों पर पड़ी थी। कुर्सियां रेस्टोरेंट की थी। इनकी हालत से लग रहा था कि आज ही टूटी हैं। मैं इनके पास ही मेज पर जा बैठा। आतिशदान के बायस अंदर की फिजा में फरहत बख्श हरारत थी। कुछ देर बाद नौजवान भाप उड़ाती चाय ले आया। हसन अली के फरमाइश पर उसने 1 कप कॉफी भी बना दी थी। उसने बिस्किट और निमको की पेशकश की थी, लेकिन महापारा ने उसे मुस्तरद कर दिया था। आते हुए इस किस्म की ढेर सारी चीजें भी खरीद लाई थी। इनमें कई तरह के बिस्किट, चिप्स, निमको, चॉकलेट और पैक सैंडविच थे, जो नौजवान ने हमें गर्म करके ला दिए। इनसे मेरी अच्छी खासी तसल्ली हो गई थी। रही सही कसर गर्म चाय के 2 कपों ने पूरी कर दी थी। अब मैं इतनी तवनाई महसूस कर रहा था कि सारी रात सफर कर सकता था। महापारा और हसन अली अपनी बात कर रहे थे। नौजवान मेरे पास आ बैठा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे अपनी मंजिल के बारे में बताया। वो चौंका। उधर तो मेरा चाचा भी रहता है। अगर किसी किस्म की भी खिदमत हो तो उससे जरूर बोलिएगा। फिर उसकी नजर टूटी हुई कुर्सियों पर पड़ी तो उसने जेर लब कहा, दाऊस के बच्चे, क्या यहाँ कुछ झगड़ा हो गया था? मैंने सरसरी से लहजा में पूछा। उसने मुंह बनाया। 2 आरामी आए थे, बदतमीजी कर रहे थे। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जवाब दिया तो उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। मालिक था नहीं, वो वापस आया तो उसने भी मुझे जिम्मेदार करार दिया और कहा कि सारा नुकसान मेरी तनख्वाह से काटेगा। ये कहाँ का इंसाफ है? उसने फरियादी लहजा में कहा। क्या कह रहे थे वो? किसी जीप के बारे में पूछ रहे थे कि वो यहाँ से तो नहीं गुजरी। मैंने जवाब दिया कि मुझे क्या मालूम, हम यहाँ काम करते हैं, सारा दिन गाड़ियां थोड़ी देखते रहते हैं। किस जीप के बारे में? मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। हल्के नीले रंग की जीप थी जिसकी साइडों पर गहरे नीले रंग से परों के निशानात बने थे। मैंने अपने तासरात पर काबू रखा। वो हमारी जीप का जिक्र कर रहा था। वो किस गाड़ी पर आए थे? कटारा सी डांसन पिकअप थी, सफेद रंग की। मुझे यकीन होने लगा कि ये वही पिकअप थी जिसे मैंने देखा था। इसकी फ्रंट सीट पर बैठे शख्स पर मुझे अरशद बिल्ला का शुबा हुआ था और वो हमारा ताक़ुब कर रहा था। नशीब में खड़ी होने की वजह से उसे हमारी जीप नजर नहीं आई थी और वो रुके बगैर आगे निकल गए और बाद में हमारी जीप को तलाश करते रहे थे। उस रेस्टोरेंट में आए और नौजवान से झगड़े के बाद इन्होंने बदमाशी का मुजाहरा किया। मेरे शक दुरुस्त था। ये कहना मुश्किल था कि वो अरशद बिल्ला ही था। वो हमारी ही तलाश में था। मैंने नौजवान के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वो बावर्ची खाने में गया मैंने मुख्तसर अल्फाज में हसन अली और महापारा को सारी बात बताई। हसन अली चौंका था। ये मुमकिन नहीं है। अगर अरशद बिल्ला किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से निकल भी जाता तब भी वो इसी तरह आज़ादी से दंदनाता नहीं फिर सकता था। वो जख्मी भी था। गोली ने उसके शाने की हड्डी तोड़ दी थी। क्या कहा जा सकता है? मैंने शाने हिलाए। हमारी पुलिस गिरफ्तार करने पर आए तो जलजले के वायरस को भी मर्ज फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर ले, पर नहाती इनके सामने गन्ने का खेत उजाड़ता है। महापारा बेख्तियार हंसी। हसन अली ने उन्हें घूरा। अगर यूसुफ का अंदेशा दुरुस्त है तो ये बेहद तशवीशनाक बात है। आखिर वो हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? जाहिर है इस खाकसार के लिए। मैं न सिर्फ इनके अज़ाइम को नाकाम बनाया बल्कि इनके 4 बंदे भी पुलिस के हाथ लगे। महापारा ने मेरी तायद की। यूसुफ सही कह रहा है। हमें मकामी पुलिस से राब्ता करना चाहिए। दुरुस्त, और हमें खुद भी मोहतात रहना होगा। हसन अली ने कहा। इसलिए मैं नौजवान आ गया। उसने बिल दिया। हसन अली ने अदायगी की। मैंने 200 अलग से उसे दिए। ये उस नुकसान की तलाफी के हैं। मैंने टूटी कुर्सियों की तरफ इशारा किया। शुक्रिया साहब। नौजवान खुश हो गया। मैं अपने घर का वाहिद कफील हूँ। तनख्वाह कट जाती तो इस महीने मेरी बहन की फीस न जाती। वो मैट्रिक कर रही है
तुम्हारे बहन भाई पढ़ रहे हैं? माँ पारा बोली। जी बेगम साहिबा, मेरा तो बचपन मेहनत मजदूरियों में गुजर गया, लेकिन अपने बहन भाइयों को मैं तालीम दिलवा रहा हूँ। हम बाहर आए तो नौजवान भी हमारे साथ था। उसने पहली बार गौर से हमारी जीप की तरफ देखा और एक लम्हे को उसकी नजरें जैसे चमक गईं। फिर उसने हमारी तरफ देखकर कहा, खुदा आपको हर आफत और हर दुश्मन से महफूज रखे। शुक्रिया दोस्त, मैंने कहा और हम जीप में सवार हो गए। जब तक जीप सड़क तक नहीं पहुंच गई, नौजवान वहीं खड़ा रहा था। उसने वाज़ेह तौर पर पहचान लिया था कि इन बदमाशों की मतलूबा जीप यही थी जिसमें हम सवार थे। हल्की सी बारिश अब भी जारी थी। बिजली की गरज चमक में कमी आ गई थी, लेकिन बादलों के तेवर में कोई फर्क नहीं पड़ा था। साफ लग रहा था कि बारिश का सिलसिला गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। मुमकिन है इसमें तेजी भी आ जाए। तेज बारिश का पानी बह चुका था और बहने वाले नदी नाले अपनी जून में वापस आ गए थे। हसन अली ने जीप की रफ्तार 15-20 मील फी घंटा तक रखी थी। ट्रैफिक न होने से भी आसानी हो गई थी। 12 बजे हमने छोटा पुल अबूर कर लिया था। माँ पारा पिछली नशिस्त पर आ गई थी और हम बोरियत दूर करने के लिए बातें कर रहे थे। हसन अली की तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग की तरफ थी। अचानक अकबी आईने में रोशनी सी लहराई। मैंने मुड़कर देखा, आसमान साफ था, बिजली चमकी नहीं थी। फिर ये रोशनी सी क्यों लहराई थी? मेरा ख्याल है हमारे पीछे कोई गाड़ी आ रही है, मैंने हसन अली से कहा। उसने चौंक कर रकबनुमा आईने में देखा और थोड़ी देर बाद बोला, तुम ठीक कह रहे हो, ये कोई छोटी गाड़ी है। मुमकिन है कोई और हो, माँ पारा बोली। हो सकता है कोई और हो, हसन अली ने भी उससे इत्तिफाक किया, लेकिन हमें मोहतात रहना चाहिए। इस वक्त जीप बड़े पुल को क्रॉस कर चुकी थी। निस्बतन बेहतर सड़क आने के बाद हसन अली ने जीप की रफ्तार में इजाफा कर दिया था। अब वो 30-35 की रफ्तार से जीप चला रहा था। अगरचे रात और मौसम को देखते हुए यह रफ्तार भी ज्यादा थी, लेकिन अगर खतरा पीछा कर रहा था तो जान बचाकर भागना दुरुस्त ही था। चंद मिनट बाद ही मतलूबा सड़क आ गई जो हमारी मंजिले मकसूद तक जाती थी। ये निस्बतन तंग और पेचदार रास्ता था जिसमें जा बजा मोड़ थे। यहाँ रफ्तार कम करना पड़ी थी। अक्कम में अब लहराने वाली रोशनी नजर नहीं आ रही थी। वो लोग शायद पीछे रह गए थे या फिर कोई दूसरी गाड़ी थी। रेस्टोरेंट के चौकीदार के बयान के मुताबिक ये सड़क तकरीबन 4-5 मील लंबी थी। गोया अभी निस्फ घंटे की मुसाफत और थी। वादी में दाखिल होते ही मैंने सुकून का सांस लिया था। मंजिल आ गई थी। अब कुछ देर बाद मैं गर्म बिस्तर में गहरी नींद सो रहा होगा। मैंने सोचा 2 मरतबा गलत बंगलों के सामने जाकर बिलाकर हमने सही बंगला तलाश कर लिया था। तारीकी में उसके तारीख दरो दीवार किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे थे। हमारी मालूमात के मुताबिक चौकीदार सवार खान यहीं रहता था, लेकिन मुसलसल हार्न के जवाब में वो नमदार नहीं हुआ तो मजबूरन हमें नीचे उतरना पड़ा। नीचे उतरते ही मैं लर्ज उठा था। बाहर गजब की सर्दी थी। कालबन चौकीदार अंदर कहीं खिड़कियां दरवाजे बंद किए ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। ये चौकीदार कहाँ मर गया है? हसन अली नागवारी से गेट की सलाखों से झांकते हुए कहा। खुशकिस्मती से अंदर सिर्फ कुंडा लगा था। वो खोला और जीप अंदर पोर्च में ले गए। गैराज में अलबत्ता ताला लगा था। मरकजी दरवाजे भी बंद थे। हसन अली पीछे चक्कर लगाया। चौकीदार का क्वार्टर भी बंद पड़ा था। ना जाने वो कहाँ चला गया था। मजबूरन एक शीशा तोड़कर खिड़की को खोला गया और हम इस रास्ते से अंदर दाखिल हुए थे। हसन अली और मैंने सामान भी इसी रास्ते से अंदर पहुंचाया था। जीप की छत पर लदे सूटकेस सुबह के लिए छोड़ दिए गए थे। बंगले का मेन स्विच अकबी हिस्से में था। इसको ऑन करते कई रोशनियां चल उठी थी। वो कमरा भी मुनव्वर हो गया था जिसमें हम खड़े थे। 2 मंजिला बंगला ज्यादा बड़ा नहीं था। 4 कमरे नीचे थे और 2 कमरे ऊपर थे। किचन और स्टोर रूम नीचे ही था। बंगले की सफाई सुथराई जाहिर कर रही थी कि हाल ही में साफ किया गया था। मैंने फोन चेक किया, वो मरा पड़ा था। यानी डट इस मौसम में ये कोई गैर मुतवक्का बात नहीं थी। महापारा ऊपर वाले हिस्से का मुआयना करने चली गई थी। हसन अली ने चाबियों का एक गुच्छा तलाश कर लिया था और अब उसे गैराज में लगे ताले पर आजमाने गया था। मैं निचले बेडरूम में आतिशदान सुलगा रहा था। नीचे ड्राइंग रूम के अलावा डाइनिंग रूम, एक स्टडी रूम और एक बेडरूम था। फैसला हुआ था कि आज रात सब इस बेडरूम में सोएंगे। डबल बेड था। इसे महापारा के हवाले कर दिया गया था। मैं और हसन अली नीचे दबीज कालीन पर कम्बलों में लेटकर सो जाते। अचानक मुझे एहसास हुआ कि महापारा को ऊपर गए खासी देर हो गई थी। ना तो वापस आई है और ना ही ऊपर से कोई आवाज आ रही थी। मैं आतिशदान में रखी लकड़ी को आग दिखा चुका था। लिहाजा हम ऊपर की तरफ रवाना हुआ। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां ड्राइंग रूम से गुजरकर एक गैलरी में खुली थी, जिसके दाएं बाएं दोनों बेडरूम थे। गैलरी की रोशनी बंद थी। मुझे खतरे का एहसास होने लगा। यह गैलरी कुछ देर पहले रोशन की थी जब मैं महापारा को यहाँ छोड़ कर गया था। मैंने बेडरूम में झांका। बेडरूम में रोशनी थी लेकिन वो खाली पड़ा था। दूसरा बेडरूम भी खाली था। मैंने हैरत से सोचा कि महापारा कहाँ गई।